He was my teacher, so I respect him very well. So welcome friends. We are into this lecture of estimating and costing unit number 4, regarding the specifications and accounting. Last time we have seen what are the syllabus, the cost accounting and specifications. Specification, its definition. An engineering specification is the document contains detailed description of the workmanship, materials, as well as measurements part is also there. Various types of the specifications we have also learned. They are nothing but the written instructions, specifications about the quality of material, workmanship, and method of execution. What are the purposes of specification? That also we have seen. They are useful to the contractors, they are useful to the supervisor, and they are useful to the owner or the government officers. Various types of the specifications we learned. That is mainly two types: brief and the detailed specification. The detailed specifications are further subdivided into three parts, that is the general, technical, and the standard specifications. The part of that standard specification is the manufacturer specification. Brief specification is nothing but the specification or the instructions that are there at the time of preparation of estimate. जब हम कोई estimate बनाते हैं किसी work का, because before, without estimate we cannot proceed further in our civil engineering work. तो estimate बनाते वक्त जो भी हमें बेसिक चीजें या मालूमात है उस बांधकाम के बारे में, तो उसका अंतर्भाव रहता है, वो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन में रहता है. डिटेल स्पेसिफिकेशन is the part of the your tender, your contract agreement. Okay, it's a part of the tender terms and the contract agreement, wherein particular items, its quality, quantity, proportion of the mortar, workmanship, method of execution, and very important is method of measurement is mentioned there. Why measurement? I am repeating it again and again, because with the measurement we can work out the quantity, and from the quantity the owner, maybe government or the private owner, may be able to pay to the contractor. Ultimately contractor is not a separate entity. ठेकेदार भले ही वो भी बेचारा हमारे जैसा ही, हमारे में से ही कोई तो भी ठेकेदार रहता है, और वो भी अपना पेट भरने के लिए ठेकेदारी करता है ना, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का लालन पालन करता है वो. तो इसलिए उसको पेमेंट करने के लिए हम मेजरमेंट लेते हैं, and on that measurement the quantity is worked out, and at the rate that is agreed we pay him that amount of that work he has completed, not other than that. उसने जितना काम किया उतना ही पेमेंट उसको देना है, ना ज्यादा का देना है. हाँ, कम दे सकते हैं, लेकिन वो फिर उसको कारण देना पड़ेगा आपको कि भाई कम क्यों दे रहे हैं, क्वालिटी खराब है क्या, कुछ टेस्ट रिजल्ट आने के है क्या, है ना. हमने लास्ट यूनिट में देखा था कि भाई why the reduced rates are paid, etc. So this is all about that detailed specification. That detailed specification के तीन पार्ट और फिर भी है: जनरल स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट इज द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन. Technical specification is again called as the schedule C of the tender as well as the contract documents. Okay, क्योंकि टेंडर को ही बाद में हम, जब टेंडर ये सभी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाने के लिए न्योता है, इनविटेशन है, टेंडर नोटिस, और हम उसको टेंडर बुकलेट भी देते हैं, फॉर्म्स जिसको बोलते हैं, जो किताब जैसा ही रहता है, एक आधे रजिस्टर साइज का, 50, 60, 100, 200 पेजेस का रहता है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ वर्क. टेंडर, टेंडर फॉर्म जिसको बोलते हैं, जिसमें ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट पेज, एब्स्ट्रैक्ट पेज जिसको बोलते हैं, या शुरू का जो रहता है शॉर्ट नोट रहती है, फिर एब्स्ट्रैक्ट रहता है टेंडर में,
फिर उसके बाद में टेंडर कंडीशंस, शेड्यूल ए बी सी एंड द ड्राइंग्स, and after those tenders are acceptable to both, that is to the contractor and the owner, सभी कॉन्ट्रैक्टर में से फिर एक चुना जाता है और वो दोनों के सिग्नेचर्स होते हैं टेंडर के ऊपर में इन एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर कंडीशन, और दैट फॉर्म्स एज द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। वही इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट होता है, तो वो कोई अलग नहीं रहते कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में ये जो शेड्यूल सी है, that is called as the technical specification of each and every item of work, है ना। आइटम ऑफ वर्क हमने पढ़ा है अभी तक के, न्यूमरस आइटम्स ऑफ वर्क आर देयर, सो फॉर एवरी आइटम ऑफ वर्क हाउ टू एग्जीक्यूट इट, उसको कैसे कि आपने है ना कॉन्ट्रैक्टर ने कैसे काम करना चाहिए, उसमें कंक्रीट है, एक्सकवेशन है, रीइंफोर्समेंट है, फॉर्म वर्क है, अर्थ वर्क है, और कोई पेंटिंग है, flooring है, various items of the construction work are there for the buildings, for the dams, for all the other works। तो मैसनरी है, कोई मुरुम बोल्डर फीलिंग है, तो वो सबके लिए बहुत ही डिटेल में लिखा रहता है कि आपने कैसे करना चाहिए, वो आज हम देखने ही वाले हैं। और सबसे आखिरी में टाइप्स है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। दीज आर दी स्पेसिफिकेशन पब्लिश्ड बाय, यह स्पेसिफिकेशन गवर्नमेंट के जो अच्छे जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, जैसे पीडब्ल्यूडी कंस्ट्रक्शन के, पीडब्ल्यूडी इरिगेशन, सीपीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे प्रिपेयर दी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। इसके बुकलेट भी रहते हैं ना, आप में से किसी को मिले तो जरूर कलेक्ट करके पढ़िए, है ना। एक आधी कहानी पढ़ते हैं वैसे जरूर समझ लीजिए, अभी समझ लेंगे तो फ्यूचर में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रहते हैं। दीज आर अगेन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन आर अगेन फॉर द all the items of work which are probably there into the construction of the buildings, dams, roads etc, है ना। ऐसा प्रिज्यूम करते हैं कि जितने भी बांधकाम के कंस्ट्रक्शन के आइटम्स ऑफ वर्क है, फिर से उसमें एक्सकवेशन, फाउंडेशन, मैसनरी, प्लास्टर, वेरियस कॉन्क्रीट्स like the M15, 20, 25, 30, 45, etc., etc. All types of the concrete, all types of the masonry, excavation, and all the construction related जितने आइटम है, नए नए भी आए तो वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो वो सब उनका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में एवरी आइटम का वो स्पेसिफाई किया रहता है, और यहां से हम उठा के लगे तो वो शेड्यूल सी में ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का एक बुक रहता है, उसे रेड बुक करके बोलते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ तक हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रिपीट किया। और मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन रहते, जो भी कोई मैन्युफैक्चरर रहता है ठेकेदार से अलग, जैसे कि कोई सीमेंट बनाता है, लोहा बनाता है, दरवाजे बनाता है, खिड़कियां बनाता है, टाइल्स बनाता है, मार्बल बनाता है, तो उसके लिए भी ग्रेनाइट बनाता है, तो उसके लिए भी वो स्पेसिफिकेशन, यानी जैसे हम बोलते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड के आईएस के जो डायरेक्शन है उस पीस का हिसाब से स्पेसिफिकेशन रहते हैं, वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन करके बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से हम आगे में चलते हैं। वी हैव आल्सो seen some part of this, that is principles of the specification। हमें ये भी पता रहना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकेशन तो कोई बाहर का आदमी आके नहीं लिखता है ना। अगेन दीज आर रिटन बाय वी द इंजीनियर, सिविल इंजीनियर ही ये स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। यह स्पेसिफिकेशन कहीं से तो भी हम एस्टिमेट या टेंडर करते वक्त we pick these specifications from somewhere, maybe from the standard specification or maybe from the old tender forms, but हम हर वक्त तो कोई लिखते नहीं बैठते, है ना। फॉर्चुनेटली अभी हमारे लिए रेडीमेड है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको लिखना नहीं है अभी। आप जब इंजीनियर होंगे तो ये तो आपके लिए रेडीमेड है अभी, ऑल एवरीवेयर दे आर अवेलेबल। ओनली थिंग इज यू शुड नो दैट व्हाट शुड बी देयर or what should not be there in the tender या in that specifications। तो वो समझने के लिए हम प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिकेशन समझ लेते हैं।
every specification must have these things. That is the subject matter. यानी जिस चीज के बारे में हम स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं उसका पूरा व्यवस्थित ब्यौरा आना चाहिए। कोई ऐसे नहीं लिखना है, निबंध नहीं लिखना है, लेकिन जो लिखना है वो प्रॉपर रहना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट रहना चाहिए, उसमें कोई गलत मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। एब्रीविएशंस, कल मैंने जैसे बोला कि हम बहुत सारे हमारे कंस्ट्रक्शन में एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। सीसी बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट, आरसी बोलते हैं रीइंफोर्स कंक्रीट, सीमेंट सीसी यानी सीमेंट कंक्रीट, दैट इज विदाउट द रीइंफोर्समेंट। but RC, the reinforced concrete, RCC, roller compacted concrete, CM, cement mortar, है ना? ऐसे बहुत सारे short forms we use. So those abbreviations should be universal. यानी कुछ नया खामगांवकर सर ने एक बना लिया एब्रीविएशन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो भी रेगुलर यूज में और डेवलपमेंट ऑफ स्टाइल, that is how to write and selection of the words etc. we will see one by one. So the subject matter of specification should give the information related to that work, that is that item of work. Instructions should not be repeated again and again, है ना, बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। ग्रामर, specification should follow the rules of grammar. Any addition, omission or misplacement of a all that material or that corn should not alter the sense of tense, है ना। कंटेंट बोलेंगे हम, द कंटेंट शुड नॉट ऑल्टर द सेंस ऑफ टेंस, यानी जो भी टेंस है, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस एक्सेट्रा, लिखते वक्त कहीं भी हमें जैसे आगे में ही एग्जीक्यूट करना है इस टाइप का उसमें टेंस रहना चाहिए। एब्रीविएशंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस फैमिलियर फॉर एनी प्रोजेक्ट वर्क शैल बी यूज्ड इन स्पेसिफिकेशंस, है ना। बार बार कुछ चीज आपको रिपीट लिखना भी आता है, तो इसलिए सीसी बोले तो सीमेंट कंक्रीट, ऐसा बहुत सारे एब्रीविएशंस हम यूज करते हैं। डेवलपमेंट स्टाइल शैल बी arranged in such a way to give clear ideas, elegant and impressive style. Selection of words, suitable words with desired meaning shall be used. Accuracy, the specification shall be accurate and complete. Inaccurate information leads to extra cost to owner and the contractor. ठीक है, बहुत एक्यूरेट रहना चाहिए। कहीं गलत इंफॉर्मेशन क्या होगी, या मिस इंफॉर्मेशन, मिस इंटरप्रिटेशन लीड्स टू एक्स्ट्रा कॉस्ट टू ओनर और कॉन्ट्रैक्टर। और वो तो हमें चाहिए नहीं, पहले से ही हमें क्रिस्टल क्लियर टेंडर में जब जाते हैं या एस्टिमेट में जाते हैं तो वो कॉस्ट में बहुत वेरिएशन इज नॉट अलाउड, बिकॉज सम फ्रॉम समवेयर वी आर अरेंजिंग द फंड्स और द कॉस्ट। बहुत ज्यादा हो गई तो भी हम ला नहीं पाएंगे, और बहुत कम हो गई तो भी एट द कॉस्ट ऑफ, एट व्हाट कॉस्ट इट इज रिड्यूस, ये भी नहीं होना चाहिए। किसी को फायदा भी नहीं होना चाहिए ज्यादा, कॉन्ट्रैक्टर को, और घाटा भी नहीं होना चाहिए। conflicting requirements, they should be framed in such a way that no conflict of results in, उसमें से ड्यूअल मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, no conflict. Practical limits and the commercial sizes, specifications framed should include practical limitations of material, sizes available in market. यानी आप स्पेसिफिकेशन में लिखते वक्त आपको मालूम रहना चाहिए, कुछ थियोरेटिकल नहीं लिखना है कि भाई आपने 40 दिन क्यूरिंग करना है, 40 डेज क्यूरिंग। अरे द रिक्वायरमेंट इज मैक्सिमम 28 डेज क्यूरिंग, और इफ यू विल राइट 48 डेज क्यूरिंग, 40 डेज क्यूरिंग, from where the contractor will arrange, he has to arrange from his own pocket. कंक्रीट के लिए तो 28 दिन क्यूरिंग से काम हो जाता है, फालतू ऊपर के 12 दिन क्यूरिंग किया, पैसा भी लगेगा, ठेकेदार को भी तकलीफ, और नॉट नेसेसरी। वैसा साइजेस अवेलेबल इन मार्केट, है ना। बहुत बार हमें मालूम रहना चाहिए कि जो ब्रिक्स अवेलेबल है मार्केट में, वो ब्रिक्स के साइजेस क्या है, वेयर दे आर 23 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, या और कोई दूसरे साइजेस की है। नहीं तो हमने स्पेसिफिकेशन में डाल देना कुछ तो भी 40 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। अब कहाँ से लाएगा वो कॉन्ट्रैक्टर, कहाँ से खुद बनाएगा ब्रिक्स,
जो अवेलेबल है मार्केट से वह लाना या वह यूज करना इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ऐसा ही टाइल्स का भी हो सकता है ना। सो व्हाट इज द मीनिंग हियर इज साइजेस अवेलेबल इन मार्केट, यानी प्रैक्टिकल लिमिट्स एंड कमर्शियल साइजेस एंड वर्कमैनशिप अवॉइड प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटीज है ना। जो चीज पॉसिबल नहीं है वह स्पेसिफिकेशन में लिखने में कोई मतलब नहीं है। साइजेस नॉट अवेलेबल इन मार्केट शुड नॉट बी मेंशन्ड। Clearness and fairness. They should be very clear, sensible and fair in words. Specification for general work shall be written in following order. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकेशन कैसे लिखना चाहिए? डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल है ना। ये फॉर्मेट अभी क्या हो गया कि योर एग्जाम विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप, मे बी, है ना। कैसे है मुझे नहीं मालूम, लेकिन व्हेन द एग्जाम वाज इन रिटन क्वेश्चन एंड आंसर, तो आपको स्पेसिफिकेशन एग्जाम में लिखने ही पड़ते थे कुछ, जो एग्जाम में पूछे, जो हम आगे में देखने वाले हैं। तो आपको ये स्पेसिफिकेशन आपको तो ध्यान में आएगा ही, अभी आगे में हम देखे थे। तो उसका पैटर्न ऐसा रहता है कि पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, है ना। समझो एखादा आप कंक्रीट का काम करवा रहे हैं, उसके स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं, तो पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट, यू ऑल आर वेरी एक्सपर्ट, you know there are four ingredients, that is a cement, aggregate, water and the admixture. So you have to write the description of each ingredient in detail, है ना। जो आपको सीमेंट है तो कौन सा सीमेंट है, उसका इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम वगैरह जो भी आपको लिखना है, दैट। एग्रीगेट है तो रिगार्डिंग एग्रीगेट, वाटर है तो रिगार्डिंग वाटर, एडमिक्सचर है तो वाटर एडमिक्सचर के बारे में। तो दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल। बाद में वर्कमैनशिप, यानी उसका मिक्सिंग कैसा होना चाहिए, बैचिंग कैसा होना चाहिए। वे बैचिंग है, बैचिंग यानी हाउ द मटेरियल ingredient is to be taken. So that batching, mixing, transportation, water cement ratio, compaction, etc., etc., that comes under workmanship. उसमें कोई टूल्स एंड प्लांट्स आपको यूज करना है क्या, whether you are using the mixer, vibrators, etc., that is its specification is to be mentioned, clauses of specification. And last but not the least is you have to mention how you are going to measure it, है ना। मैंने आपको बताया यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ इज द मेजरमेंट, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेजर। कॉन्क्रीट है तो वो क्यूबिक मीटर में करने वाले हैं मेजरमेंट, स्क्वायर मीटर में करने वाले हैं कि रनिंग मीटर में, दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कंक्रीट। जैसे एखादा फाउंडेशन का कंक्रीट है, बीम का कंक्रीट है, एखादा स्लैब का कंक्रीट है, तो वी पे इन मीटर क्यूब। लेकिन एखादा कहीं डीपीसी है ना। मैंने बोला डैम प्रूफ कोर्स करके, लॉन्ग फॉर्म आप ध्यान में रखिए, परमानेंट। इट इज पुट अबोव द लिंटेल बीम, या लिंटेल में आने के बाद में मैसनरी के ऊपर में डीपीसी डाला जाता है, तो इसकी विड्थ फिक्स रहती है, थिकनेस फिक्स रहता है, तो इसको रनिंग मीटर में पेमेंट करते हैं। एक आधे बार फ्लोरिंग है कंक्रीट का, उसकी थिकनेस फिक्स है, तो वो फ्लोरिंग स्क्वायर मीटर में उसका पेमेंट किया जाता है। तो मेजरमेंट भी उसी तरह से लिए जाते हैं। ये एग्जांपल मैंने दिया। तो मेजर और उसी मेजरमेंट लेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, फिर उस तरफ से उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है। सो देयर फॉर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट स्पेसिफिकेशन में ये मेजरमेंट पार्ट रहता है। मैं आपको बहुत अभी अंधेरे में नहीं रखूंगा, आगे में हम एक दो, आज जैसा समय मिलता है, एक दो आइटम के स्पेसिफिकेशन देखने ही वाले हैं। ये सिर्फ आपको एक थियोरी और थियोरेटिकल पार्ट आपका क्लियर रहे कि स्पेसिफिकेशन किस ऑर्डर में लिखे जाते हैं, है ना। जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है, तो यूनिट 1 से लेके तो यूनिट 6 तक के उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं इन द पेपर, और हर क्वेश्चन को और रहता है। दैट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ द नागपुर यूनिवर्सिटी, या किसी भी वैसे ही स्पेसिफिकेशन का ये पैटर्न है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, वर्कमैनशिप, टूल्स एंड प्लांट, क्लॉजेस ऑफ द स्पेसिफिकेशन, एंड लास्ट इज द मेजरमेंट। ऐसा पैटर्न में स्पेसिफिकेशंस लिखे जाते हैं। ठीक है। अभी हम जैसे एग्जाम में आपके यूनिवर्सिटी के पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, राइट द डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स,
सेकंड क्लास है ना, ब्रिक मैसनरी एक फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ऐसा बोलते हैं। अभी तक ऐसा मुझे कहीं दिख, ये ओल्ड इन ओल्ड टाइम्स मे बी इन today's world also they may be using first and the second class. That again depends on the type of the bricks. So the second class brick masonry है ना, ब्रिक मैसनरी ये हम ख्याल में रखते हैं। इन सीमेंट मॉर्टर 1:6 इन सुपर स्ट्रक्चर ऐसा आइटम ऑफ वर्क है। तो इसके लिए स्पेसिफिकेशन लिखिए, लेइंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट 148 मिक्स इन फाउंडेशन, 12 सेंटीमीटर थिक सीमेंट प्लास्टर in cement mortar 1:4. So write the detailed specifications of the following items है ना। Again, at this juncture I wanted to remind you that I have put the notes of this unit number 4 on your Google Classroom। ठीक है, I request you all to please download it। आपको चाहे तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालता हूँ 7 सेम के, बट प्लीज डाउनलोड एंड देयर आर न्यूमरस आइटम्स ऑफ वर्क आई हैव कवर्ड है ना। अभी तो हम 2 4 5 के ही डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए जितने आइटम्स ऑफ वर्क है मैक्सिमम उसके स्पेसिफिकेशंस मैंने उसमें डाले हैं। बिल्डिंग के लिए है, रोड्स के लिए है। सो प्लीज गो थ्रू दैट। कोई हर चीज हमें मग करना नहीं है, पाठ नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ एक बार पैटर्न यदि मालूम हो गया तो आई हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन राइट ऑन योर ओन। एवरीबडी कैन राइट। ओनली थिंग इज ये ऐसा, जैसे मैंने अभी पहले के स्लाइड में बोला कि स्पेसिफिकेशंस का जो पैटर्न है वो रहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, वर्कमैनशिप, टूल्स एंड प्लान, क्लॉजेस ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड द मेजरमेंट लास्ट। तो ऐसे ये 3 आइटम है, और भी कुछ आइटम के वी विल सी वन बाय वन। ओके, नाउ लेट अस मूव that to the first, that is the specifications for first class, yes second class brick masonry in cement mortar 1:6। ठीक है, specifications for first class brick masonry in cement class brick in cement mortar 1:6 ऐसा आइटम ऑफ वर्क है। दिस इज द आइटम ऑफ वर्क। ओके, this item is the part of your estimate, is the part of your tender, is the part of your contract। तो ये तो जरूर आपको इसके ये स्पेसिफिकेशन ऐसे हर एक जितने आइटम है उसके लिख के वो आपको शेड्यूल सी में चिपकाना है और वहां पे रेफरेंस करना है। ठीक है, या लिखना है, कहने का मतलब। अब कैसे रहता है पैटर्न, मैंने जैसे पहला पार्ट है मटेरियल्स। सो द ब्रिक मैसनरी के मटेरियल कौन कौन से है? पहली तो ब्रिक है ना, ईटे जिसको बोलते हैं, इट शुड बी BRIC के ब्रिक। द ब्रिक शैल बी मोल्डेड फ्रॉम गुड अर्थ फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स। अब ब्रिक के थोड़ा मैं आपसे पढ़ता हूं इसको, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, और आपके दिमाग में भी रहेगा है ना। बिना बिना वजह फास्ट जाने में कोई मतलब नहीं। एक 2 3 आइटम के हम समझ लेते हैं अच्छे से। So brick के specification, this is all about the red brick, huh? This is about the red brick, or we can say burnt brick, जो हम brick भट्टी में बनाते हैं। It is not about the cement brick or the fly ash brick. This is for, therefore it is first class brick। तो ये burnt brick को first और second class brick करके बोलते हैं ना। लाल ईंटें जो आती है हम भट्टी में जो बनाते हैं। So the brick should be molded फ्रॉम गुड अर्थ, माटी से वो बनती है, गुड अर्थ, फ्री फ्रॉम सॉल्ट, वो माटी में सॉल्ट नहीं रहना चाहिए। ब्रिक्स शैल बी ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, रेगुलर इन शेप एंड साइज विथ शार्प एजेस एंड कॉर्नर्स। उसके जो कोने वगैरह रहना चाहिए वो शार्प रहना चाहिए, टूटे फूटे नहीं रहना चाहिए। दी ब्रिक शैल बी वेल बर्न्ड, अच्छे से उसको भट्टी में तपाना चाहिए है ना। आप एक आधे बार ईटा की भट्टी गए कि नहीं मालूम नहीं, एक आध बार जाइए, जरूर देखिए, कहीं तो भी आपके आसपास रहती है। तो वो सादे जो हमारी सॉइल रहती है, माटी से पहले मोल्ड करते हैं, या यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो अभी आप तो ये माध्यम बहुत इजी है। सो यू कैन गेट हाउ द ब्रिक्स आर प्रिपेयर्ड, बर्न्ड। सो ब्रिक शैल बी वेल बर्न्ड फ्रॉम द अप्रूव्ड किल्न। किल्न यानी भट्टी, मैंने आपको कभी तो भी पढ़ा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किल्न, KILN, किल, किल्न, या एल हर का बोलना, किन। सो अप्रूव्ड किल्न भट्टी ऑफ डीड रेड और कॉपर कलर, हाँ,
उसका जो ईटा का कलर लाल रहना चाहिए, कॉपर कलर, फ्री फ्रॉम क्रैक्स, वो ईंटों को क्रैक नहीं रहना चाहिए, फ्लॉज एंड लम्प्स, उसमें कोई गड़े नहीं बनना चाहिए, है ना, ईटा यूनिफॉर्म रहना चाहिए, है ना। बहुत बार ईंटों में हमें काले लम्प्स दिखते हैं, तो ऐसा नहीं रहना। वो क्यों रहते हैं कि कहीं तो भी उसमें सिल्ट वगैरह ज्यादा रहती है, एक आधा सॉल्ट रहता है। शैल नॉट शो एनी साइंस ऑफ एफ्लोरेसेंस, याद कीजिए कंक्रीट में हमने पढ़ा है एफ्लोरेसेंस मींस इफ देयर आर सॉल्ट इन द सॉइल दैट विल कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द ब्रिक, और व्हाइट व्हाइट कलर आता है ना, बहुत बार ब्रिक्स में हमें दिखता है। तो वो एफ्लोरेसेंस नहीं रहना चाहिए इन ड्राई एज वेल एज वेट स्टेट। सूखी ईंट या ईंटों को हम तो यूज करने के पहले गीली करते हैं, आगे में हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें उसके ऊपर कोई एफ्लोरेसेंस नहीं रहना चाहिए। ड्राई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई ब्रिक्स शैल नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 20% ऑफ देयर वेट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। ये ब्रिक का टेस्टिंग है, कहीं तो भी आपने आपके आइदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, अप्लाइड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और समवेयर यू, और या कंस्ट्रक्शन, आपका जो थर्ड सेम का सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बीसीएम, तो उसमें ये ब्रिक्स के क्वालिटी के बारे में आपने जरूर जरूर पढ़ा है। द ब्रिक्स शैल नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 20% ऑफ देयर वेट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। 24 घंटा ब्रिक पानी में रखने के बाद में उसने अपने वजन से 20% से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ज्यादा एब्जॉर्ब किया, इसके दो मतलब होते हैं कि वो ब्रिक्स के जो बर्निंग बराबर नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारे वॉइड्स है, and the soil is also in the original silt form, it is absorbing more water, and that is not good for the construction. Brick shall have an average compressive strength of 10 newton per mm square, है ना, 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यह उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, ब्रिक शैल गिव क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। ब्रिक के ऊपर में जब हम ऐसा ठोकते हैं किसी पत्थर से या हमारे ऐसे उंगली से, तो रिंगिंग साउंड आना चाहिए, अच्छा आवाज आना चाहिए उसका, बद्ध आवाज नहीं आना चाहिए। द ब्रिक शैल बी ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन, है ना, ये ब्रिक के साइजेस है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, 190 मिलीमीटर बाय 90 मिलीमीटर बाय 90 मिलीमीटर, और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पीडब्ल्यूडी, है ना। इंडियन स्टैंडर्ड तो बोलता है कि 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, या 190 मिलीमीटर बाय 90, या हमारे बाजार में जो मिलती है, जो मार्केट में अवेलेबल है ना। अब इंडियन स्टैंडर्ड ने बोला करके यही बीटे चाहिए ऐसा नहीं है। एक आधे बार मार्केट में जो अवेलेबल साइज है, जैसे 230 मिलीमीटर बाय 10 मिलीमीटर बाय 9 मिलीमीटर, ये साइज की ईंटें जनरली हमारे भाग में, हमारे एरिया में, नागपुर है, आजू बाजू है, तो यहाँ वो साइज की अवेलेबल है, तो वो साइज का हमने स्पेसिफिकेशन में लिखना चाहिए। सैंड, इट शैल बी कोर्स, कोर्स सैंड रहना चाहिए, वेल ग्रेडेड, है ना। अभी ग्रेडिंग ऑफ सैंड आप सबको मालूम है, फाइननेस मॉड्यूलस वगैरह, क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, ठीक है, क्योंकि हम ये सैंड सीमेंट मॉर्टर में बाइंडिंग के लिए यूज करने वाले। सीमेंट, इट शैल बी फ्रेश, कंफर्मिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। जो भी आईएस है 269 एक्चुअली इंडियन स्टैंडर्ड सीमेंट का ओरिजिनल इंडियन स्टैंडर्ड है, जो फॉर द 23 ग्रेड, ओके। सो बाकी भी जो है 23, 33, 43 एक्सेट्रा, 33, 43, 53, आई मीन टू से, सॉरी, सो 33 ग्रेड, 43 एंड 53 के लिए जो भी आईएस आपको जो मेंशन करना है वो इसमें मेंशन करना है। वाटर, पोर्टेबल वाटर, पीने लायक जो पानी है उसको यूज करना चाहिए। ये हो गया मटेरियल्स के बारे में। Okay, now material part is over. If you are using or allowing, asking to use any plasticizer or any admixture, तो उसको भी वहां पे मेंशन कीजिए, है ना। अभी सर ने आपको पढ़ाया कि आप एक आधा फाइबर यूज करते हैं, है ना। बहुत आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ते जा रही है कि मॉर्टर में भी फाइबर यूज करते हैं, बारीक रहता है उसका जो
लेंथ रहती है, that is very small, but it is used again. So mention that also. So materials part is over. Now the workmanship part is started. B part. पहला हमने देखा था मटेरियल, सेकंड इज द वर्कमैनशिप. मॉर्टर, ब्रिक वर्क शैल बी कैरिड आउट विथ स्पेसिफाइड सीमेंट मॉर्टर. बताया ही है सीमेंट मॉर्टर 1:6. 1:6 है ना, 1 पार्ट ऑफ द सीमेंट एंड 6 पार्ट ऑफ द सैंड. The ingredient of cement mortar should be mixed in specified proportion, that is 1:6. The sand and cement for mortar shall be thoroughly mixed, dry on solid, clean, watertight platform. मैन्युअली कर रहे हैं तो नहीं तो मिक्सर में ही करना चाहिए. सीमेंट मॉर्टर इज मिक्स्ड वेट बाय एडिंग वाटर एटलीस्ट 3 times. जो भी वाटर सीमेंट रेशियो है उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए, ग्रेजुअली and evenly. The cement mortar shall be prepared in required quantity of not more than 1 bag of cement at a time. है ना, इतने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ये स्पेसिफिकेशन में रहते हैं, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन ना रहे. है ना, ठेकेदार ने, कॉन्ट्रैक्टर ने मॉर्टर बनाते वक्त मसाला जिसको बोलते हैं मराठी हिंदी में, है ना, मसाला बोलते हैं, सीमेंट और सैंड मॉर्टर को मसाला बोलते हैं. तो ये मॉर्टर बनाते वक्त या मसाला बनाते वक्त एक ही बैग का बनाना चाहिए, है ना. या दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द मेसन्स यू हैव. आपके पास में एक मैसन है, वो काम कर रहा है जुड़ाई का, तो वो क्या करेगा, एक बैग का, यदि 2 बैग का बनाया तो वो उतना यूज नहीं कर पाएगा और सीमेंट सेट हो जाएगा और बाद में वो मॉर्टर को उतनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं रहेगी. सो देयरफॉर दैट 1 बैग इतना क्लियर कट रखना चाहिए. सीमेंट मॉर्टर शैल बी प्रिपेयर्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ नॉट मोर देन 1 बैग ऑफ सीमेंट एट ए टाइम. यानी एक बैग सीमेंट और 1:6 है तो 6 बैग, है ना, 1 बैग ऑफ सीमेंट तो 6 बैग्स ऑफ द सैंड, इतना ही लेके आपको मॉर्टर बनाना है ना. फर्मे में ले तो फर्मे में भी ले सकते हैं. फर्मा टेम्पलेट मैंने आपको पढ़ा है, वो फॉर्म वर्क जिसको फर्मा जिसको बोलते हैं, टेम्पलेट, ठीक है, वो आप यूज करके कीजिए. मॉर्टर ऑफ प्रॉपर कंसिस्टेंसी शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द वर्क. मिक्सिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो रेती अलग, सीमेंट अलग, पानी अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रॉपर कंसिस्टेंसी. ओनली फ्रेश मॉर्टर विद इन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट. आप सबको मालूम है व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, कितना है, 30 minutes. सो विद इन हाफ आवर फ्रॉम द टाइम ऑफ द एडिंग वाटर शैल बी यूज्ड फॉर वर्क. है ना, पानी ऐड करने के बाद में मॉर्टर में आधे घंटे में वापरना चाहिए. ये इतने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन. नाउ द सोकिंग ऑफ द ब्रिक्स, मैंने आपको जैसे बताया, वापरने के पहले ईंटें पानी में डुबोनी चाहिए, सोक करना चाहिए उसने पानी. दैट इज कॉल्ड एज द सोकिंग ऑफ ब्रिक्स. ऑल ब्रिक्स शैल बी थरोली सोक्ड इन वाटर बाय सबमर्जिंग ब्रिक्स इन क्लियर वाटर फॉर एटलीस्ट 4 hours बिफोर यूज. यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, है ना. आप भी कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे या हमारे में से कुछ स्टूडेंट साइट पे इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो ये ख्याल में रखना. बहुत बार ठेकेदार ऐसा करता है कि उसको प्रोग्रेस जल्दी करने के लिए थोड़ी ईंटा के ऊपर में पानी डाल देता है और वो यूज करता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए. और पानी तो डाला ही तो बहुत अच्छी बात है, जो वीट शुड बी वेट, द bricks should be wet, but at least they should be put in water for 4 hours before use, ऐसा स्पेसिफिकेशन बोलता है ना. अभी कितना हम फॉलो करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो साइट इंजीनियर या जिसको सुपरवाइजर करके बोलते हैं, और दूसरा ठेकेदार का मैसन और उसके इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर्स पीपल. सी बोथ दे वर्क टुगेदर सिस्टमेटिकली, गुड क्वालिटी वर्क विल बी देयर. ब्रिक लेइंग, है ना, अभी जुड़ाई कैसी करनी चाहिए, है ना, मैं आपको प्रैक्टिकल वर्ड भी बताता हूँ. ब्रिक लेइंग यानी जुड़ाई, जुड़ाई बोलते हैं हम हमारे कॉमन लैंग्वेज में, या हम साइट पे जाएंगे तो वो जुड़ाई करके बोलते हैं. सो ब्रिक लेइंग शैल बी इन स्पेसिफाइड बॉन्ड. आपने बहुत सारे इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड वगैरह पढ़े हैं, तो वो मैसन को इतना कुछ नहीं समझता, वो लगे तो अपने से होशियार रहता है,
उसको बड़े ही इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड नहीं पड़ता, लेकिन उसको बॉन्ड कैसे देना, कैसे वो उसको जॉइंट जो रहते हैं दो ईंटों के बीच में, उसको जॉइंट, और नॉर्मल लैंग्वेज में उसको दर्जा करके बोला जाता है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल वर्ड भी बताता हूँ। the bond between the two bricks, either the horizontal bond or the between the these vertical bonds, they are broken, उसको जॉइंट तोड़ना करके बोलते हैं। या जो हम ये आप स्पेसिफाइड बॉन्ड यानी इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड वगैरह जो है, तो ये दे शुड बी मेंटेन्ड टू हैव द लॉकिंग ऑफ द ब्रिक्स। ये बॉन्ड हम क्यों देते हैं? लॉकिंग, इंटरलॉकिंग ऑफ द ब्रिक्स शुड बी देयर एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर इंचार्ज। ऐसा वर्डिंग ही रहता है भला। ये द एज डायरेक्टेड बाय इंजीनियर इंचार्ज इज द वर्डिंग इन द स्पेसिफिकेशन। साइट वाला इंजीनियर जैसे बोलेगा वैसे आपको जुड़ाई करना है स्पेसिफाइड बॉन्ड में। ए लेयर ऑफ मॉर्टर शुड बी स्प्रेड ऑन फुल विड्थ ओवर ए सुटेबल लेंथ ऑफ द लोअर कोर्स। नीचे की जो जुड़ाई हुई है उसके ऊपर में मसाला डालना है। लेयर ऑफ मॉर्टर शुड बी स्प्रेड ऑन फुल विड्थ ओवर ए सुटेबल लेंथ ऑफ द लोअर कोर्स। नीचे का जो कोर्स है, ईच ब्रिक शैल बी लेड प्रॉपरली विथ ए फ्रॉग अपवर्ड। फ्रॉग है ना जिसमें खाचा रहता है, वो पार्ट ऊपर में रहेगा, है ना। ईंटों को दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है जिसमें खाचा, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रॉग, एंड अनदर इज द प्लेन, नीचे का प्लेन रहता है। तो फ्रॉग ऊपर में रखते हैं ना, यानी फिर वो दो, नीचे का फ्रॉग और ऊपर का प्लेन, ऐसा बॉन्ड हो जाता है उसका। So each brick shall be laid properly with frog upward and set to true line and plumb। बराबर लाइन, वो मैसन बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, हम इंजीनियरों से तो ज्यादा काम करने के लिए वो मैसन जो मिस्त्री रहते हैं वो बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। वो बराबर लाइन दोरी वगैरह लगा के प्रॉपर लाइन में जुड़ाई करते हैं। और प्लम्ब यानी जिसको हम वर्टिकल प्लम्ब या उसको, अभी मुझे मराठी या हिंदी वर्ड एकदम इमीडिएट याद नहीं आ रहा है ना, प्लम बोलते हैं वो, दैट कीप्स दी वर्टिकलिटी परफेक्ट। सो दैट प्लम्ब इज देयर, दैट मैसन। आप एखादे साइट पे जाके देखिए वो जुड़ाई कैसे करता है, तो ये सब पता चलेगा। एवरी कोल शॉट बी लेवल्ड बाय जेंटली टैपिंग। हर जुड़ाई का जो कोर्स है उसको वो बाद में टैप करता है, ताकि वो बराबर कोई वाइड्स वाइड्स ना रहे। जेंटली टैपिंग, वो कवचा रहता है उसके पास में, है ना, कवचे से वो ठोकता है बराबर, है ना। हम क्या बोलेंगे उसको, स्पैनर या कुछ, तो भी इंग्लिश में मुझे वर्ड अभी याद नहीं आ रहा। ब्रोकन ब्रिक शैल नॉट बी यूज्ड। टुकड़े हुए ब्रिक नहीं यूज करना, एक्सेप्ट एज क्लोजर और रिक्वायर्ड शेप, है ना। एक्सेप्ट कहीं तो भी कोने काने में आखिरी में क्लोज करते वक्त आपको छोटी ब्रिक लग सकती है, तो आप तोड़ के यूज कर सकते हैं, लेकिन बीच में ब्रोकन ब्रिक यूज नहीं करना। और रिक्वायर्ड शेप वर्टिकल जॉइंट, फिर से वर्टिकल जो भी हमारे इंग्लिश जॉइंट है, इंग्लिश और फ्लेमिश वगैरह हमने पढ़ा, तो वो जॉइंट तोड़ने के लिए, है ना। वर्टिकल एक लाइन में कभी जॉइंट नहीं आना चाहिए जुड़ाई का, मैसनरी का। एक जॉइंट आया तो वो दैट देयर विल बी क्रैक्स। तो इसलिए एक लेयर का जॉइंट दूसरे लेयर का बाजू में, ऐसे ऑल दिस जॉइंट्स आर मेंटेन्ड, they are called as the breaking of the joints, or you must have learned that is that English bond and Flemish bonds, etc. So vertical joints in the altar shall become directly one over the other. Broken brick shall not be used. Okay. Now the brick laying में ही आगे में, brickwork shall be carried out to uniform height of not more than 1 meter per day। है ना, ये जरा हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, हमें भी समझना चाहिए कि काम कैसे करना है। एक दिन में 1 मीटर के ज्यादा जुड़ाई नहीं करना। Not more than 1 meter, 3 feet. Why? Because that will not properly keep the line and the plumb, and it may also create the problem in future। तो 1 मीटर, 1 मीटर इज सफिशियंट। लगे तो आप लेंथ में कितना भी कर सकते हैं। मॉर्टर जॉइंट शैल नॉट बी मोर देन 10 मिलीमीटर इन थिकनेस। दो ईंटों के बीच में जो मॉर्टर जॉइंट रहता है, दर्जा, मैंने आपको वर्ड बताया, दर्जा करके बोलते हैं। दैट जॉइंट शुड नॉट बी मोर देन 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा वो जॉइंट नहीं रहना चाहिए। जॉइंट शैल बी फुल ऑफ मॉर्टर। दो ईंटों के बीच में का जॉइंट मसाले से, मॉर्टर से पूरा भरे जाना चाहिए। जनरली मैसन का इस तरफ ख्याल अच्छा नहीं रहता है, और वो मॉर्टर से बराबर भरते नहीं है, और फिर बाद में कहीं तो भी लीकेजेस और क्रैक्स का प्रॉब्लम आता है।
So therefore, initially these precautions to be taken. Therefore, these are mentioned into the specifications. All mortar joints on surface of the wall shall be racked to minimum depth of 15 millimeter when the walls are to be plastered. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मॉर्टर जॉइंट है दो ईंटों के बीच में के, है ना, जब ये पूरे सेट हो जाते हैं और इसको बाद में हम प्लास्टर करते हैं इसके ऊपर में, तो ये जॉइंट जो है इसको रैकिंग करके बोलते हैं या खरोच के निकालना। 1 या 1.5 सेंटीमीटर ये जॉइंट खीले से खीला रहता है या कोई नेल एनी अदर टाइप ऑफ द मटेरियल, with that these set joints are racked or they are removed with the help of the nail to a depth of 5 to a depth of 1 to 1.5 centimeter or 15 millimeter. Why? इसके ऊपर जो प्लास्टर करते हैं हम जुड़ाई के ऊपर में, तो वो प्लास्टर क्या करता है कि दैट प्लास्टर विल हैव द बॉन्डिंग विद दैट रैक जॉइंट एंड द प्लास्टर विल बी स्टेबल ऑन दैट मैसनरी। ठीक है, मैसनरी के ऊपर में हम जो प्लास्टर करते हैं वो प्लास्टर चिपक के रहना चाहिए ना, जो है मैसनरी के ऊपर में कैसे रहेगा वो, तो वो तभी रहेगा जब हम वो जॉइंट को खोलेंगे, ओपन करेंगे, जिसको रैकिंग करके बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, ताकि हम प्लास्टर करेंगे तो वो बराबर उसको चिपक के रहेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द आयरन फिक्सचर्स, यानी जो भी लोहे के कुछ अटैचमेंट्स है दरवाजे या खिड़कियों के, सम हिंजेस आर देयर or some pipes, outlets for water, hold fast for the doors, very important, hold fast for the doors, and the windows which are required to be built into the wall shall be embedded in cement concrete as specified at correct position. ये भी स्पेसिफिकेशन में लिखना जरूरी है ना। ये यदि, यानी कहने का मतलब क्या है, वॉट एवर प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस टू गेट द परफेक्ट डिजाइन और परफेक्ट रिक्वायर्ड। कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। दरवाजे खिड़कियों के होल्ड फास्ट रहते हैं, वो होल्ड फास्ट दरवाजा बाद में फिट करने के काम में आते हैं, लोहे के रहते हैं, है ना, इसलिए बोला एक आधे साइड पे जाइए तो आपको ये सब काम दिखेंगे। या कोई पाइप हम लगाते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई के पाइप्स रहते हैं, वाटर के आउटलेट्स रहते हैं, ये जुड़ाई में रहते हैं। हमें घर में तो बाहर में घर पूरा फिनिश दिखता है, लेकिन काम करते वक्त ऑल दीज थिंग्स आर दे आर प्रोवाइडेड इन द मॉर्टर और इन द मैसनरी। सो बाद में मैसनरी होने के बाद में उसको तोड़फोड़ करके छेद करके नहीं करना है ये काम। यह काम पहले से ही एंटीसिपेट करके हमें दरवाजा जहां लगाना है, खिड़की जहां लगाना है, वाटर सप्लाई का पाइप है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के पाइप है, ये जो भी है, तो ये सब पहले से ही काम चालू वक्त वो ब्रिक मैसनरी में आना चाहिए। दिस इज एक्सपेक्टेड एंड देयरफॉर इट इज इंक्लूडेड इन दिस ब्रिक लेइंग, है ना। ये इतना करके हम खत्म कर देते हैं ये ब्रिक मैसनरी का। बाद में तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज मैं आपको बार बार पढ़ाता हूँ, दैट इज क्यूरिंग, है ना। क्यूरिंग ये सब मर्ज की दवा है, ये ध्यान में रखना। कहीं भी कंक्रीटिंग में कुछ कम ज्यादा हो गया, ब्रिक मैसनरी में कुछ कम ज्यादा हो गया, कॉम्पैक्शन बोलो, वाटर सीमेंट रेशो बोलो, या कुछ भी, तो इसको सबको दुरुस्त करने के लिए क्यूरिंग इज वेरी गुड। सो क्यूरिंग brickwork shall be protected from rain when the mortar is green। जब मॉर्टर ग्रीन यानी गीला रहता है तब तब उसको बरसात से बचा के रखिए, है ना। बारिश आई तो उसके ऊपर फिर बोरा वगैरह डालिए, नहीं तो पूरा मॉर्टर बह जाएगा। The masonry work shall be moist in on all faces for a minimum period of at least 7 days। 7 दिन के लिए इसका क्यूरिंग करना बहुत जरूरी है। और ये ब्रिक्स को हम सोकिंग क्यों करते हैं वाटर से, वो इसीलिए करते, नहीं तो वो मॉर्टर में का पानी सोक कर लेगा, है ना। ब्रिक्स तो हमारी पोरस ब्रिक्स है, पोरस है ना, पोरस है ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स क्या करती है वो, नहीं तो मॉर्टर में का पानी सोक कर लेगी, करती ही है यदि आपने ब्रिक को गीला नहीं किया तो। और फिर मॉर्टर में का वाटर सीमेंट रेशो कम हो जाएगा, सीमेंट और वाटर का जो प्रोपोर्शन है, वाटर सीमेंट रेशो कम होगा, और दैट मॉर्टर विल बी वेरी ब्रिटल। शिट हाकालय नाही यार, कोणाचा तरी आवाज येतो आहे त्याच्यानंतर आहे स्कॅफोल्डिंग,
सो स्कैफोल्डिंग यानी ईटा की जुड़ाई करते वक्त जो हम हमारे लोकल लैंग्वेज में उसको चैली करके बोलते हैं, ठीक है, चैली, आई एम टेलिंग यू, वो बांस और इसकी बनाया जाता है ताकि वो मैसन ऊपर अच्छे से चढ़ सके और वो जुड़ाई ऊपर ऊपर की लेवल की कर सके. दैट इज कॉल्ड एज द स्कैफोल्डिंग. सो स्कैफोल्डिंग शैल कंसिस्ट ऑफ साउंड एंड स्ट्रॉन्ग वर्टिकल सपोर्ट्स, है ना, गिरना नहीं चाहिए उस पर से, टाइट टुगेदर विथ हॉरिजॉन्टल टिम्बर पीसेस, लकड़े के या लोहे के टुकड़ों को अच्छे से बाइंड करके, आजकल तो नट बोल्ट से भी आते हैं, और विथ हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लकड़े के टुकड़े या जिसको बांस के भी ऐसे बनाए जाते हैं, उसको उसके ऊपर मैसन या मिस्त्री खड़ा रह के जुड़ाई करता है. एक दो मंजिले की बात अलग है, जब मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग रहती है तो भी ये रहता है. और इसके साथ में और मैं ऐड कर देता हूँ कि वो मैसन को हेलमेट वगैरह पहना देना चाहिए, कुछ तो भी सेफ्टी प्रिकॉशन है ना, बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं. एंड द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द कॉन्ट्रैक्टर एंड द इंजीनियर इन चार्ज. सो द होल्स लेफ्ट इन मैसनरी, बहुत बार स्कैफोल्डिंग से छेद रहते हैं, तो वो लेफ्ट इन मैसनरी वर्क्स फॉर स्कैफोल्डिंग शुड बी फिल्ड विथ सीमेंट मॉर्टर बिफोर प्लास्टरिंग, है ना. आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए एक आधे साइड पे गए तो ये जो स्कैफोल्डिंग निकालने के बाद में छेद छेद रहते, क्योंकि वो बांस, वो लकड़े के टुकड़े हम कंक्रीट में फिक्स जुड़ाई में फिक्स करते हैं, उसको फिर से भरना चाहिए. आखिरी मेजरमेंट, मेजरमेंट पार्ट means the contractor has to be paid, na. So therefore the measurement, the brickwork shall be measured either in meter square or meter cube. The brickwork shall be measured in meter square or meter cube, again depending on which type of the brickwork. ठीक है, बहुत हमारा 23 सेंटीमीटर या जिसको 9 इंची वॉल बोलते हैं, तो in that case we measure in meter cube, that is length, breadth or height of the wall multiplied by the width of the wall and thickness of the wall. So length, breadth into depth. And if the wall thickness is less, हाफ ब्रिक वॉल जिसको बोलते हैं, बहुत बार पार्टीशन वॉल रहती है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हम मीटर स्क्वायर से देते हैं, स्क्वायर मीटर. तो मेजरमेंट हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं. द लेंथ एंड हाइट शैल बी मेजर्ड एट साइट, लेंथ एंड हाइट शैल बी मेजर्ड एट साइट, है ना. ड्राइंग में से नहीं देखना है, ये साइट पे गिनना है एक्चुअल कितनी है. तो द रेट फॉर ब्रिक वर्क इंक्लूड्स रेट फॉर स्कैफोल्डिंग ऑल्सो, है ना. अभी रेट एनालिसिस हम आगे में पढ़ेंगे. तो ब्रिक वर्क का जो रेट है, तो उसमें ये स्कैफोल्डिंग या जो सपोर्ट चैली वगैरह जिसको बोलते हैं वो भी इसमें आना चाहिए, या उसका भी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अरेंजमेंट करता है. वॉट एवर ही अरेंजेस एवरीथिंग इज टू बी पेड. ओके, तो यहाँ पे हम रुकते हैं.